So this is the news update document that was published in the PIB website post the announcements made by the finance minister in the evening. So this document is titled Finance Minister Announced Measures for Relief and Credit Support Related to Businesses, especially MSMEs, to support Indian economy's fight against COVID-19. A summary of the announcements has been presented here, and I've highlighted some economic terms that were used in the announcement, which we will be discussing in the coming few minutes. I want you to go through this document provided in the link in the description box so that you can understand the context to which all these terms have been used, and we can discuss it with an open mind, and that you can absorb the most of it. So I would request you to please go through this document. A link for this is provided in the description box. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 पैंडमिक के इफ़ेक्ट्स से जूझने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए हैं पिछले 1-2 महीनों में, और कुछ सेक्टर्स में आने वाले दिनों में क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, इसके अनाउंसमेंट की चर्चा इस प्रेजेंटेशन में है, जो कि उस वेन्यू पे प्रेजेंट हुई थी जहाँ पे अनाउंसमेंट्स हो रहे थे. So this is the official presentation that was run at the venue of the announcement of the reforms regarding few sectors of the economy today. So let's go through this document, but before going forward, I'd like to clarify that I will not discuss how much money has been provided to which sector or which part of the economy and who it will benefit, but what I'll deal with are the economic terms that were mentioned in the latest announcement. Of course, there were many terms that you have heard before, you know about them. There are terms that you have learned or come across the first time. So what I'll do is dive deep into these concepts, into these economic terms, and then we can understand all the announcements and all the reforms in a better way. So let's go through this presentation first. तो ये slide जो है, this talks about the announcement that Prime Minister made day before yesterday, which talked about an Atmanirbhar Bharat or self-reliant India, which was planned to be based on 5 pillars: economy, infrastructure, system, vibrant demography and demand. ठीक है. तो अभी तक जो काम हुए हैं उसमें ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है, कुछ अदर मेजर्स हैं जैसे कि आरबीआई के वेज एंड मीन्स एडवांसेस का बढ़ना, ओवरड्राफ्ट ड्यूरेशंस के लिमिट को बढ़ाना एंड ऑल दीज थिंग्स. कुछ आरबीआई के भी मेजर्स थे जिसमें कि सीआरआर वगैरह को कम किया गया था, एट्सेट्रा. ऑल दीज थिंग्स वर डन. These are the 16 points that were announced today. Now अगर आप इसको कैटेगराइज करके पढ़ें तो ये 16 पॉइंट्स को आप 6 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं. ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपने स्पीच में कहा था कि she was going to talk about 6 topics today and the rest of the topics, rest of the sectors will be dealt in the coming days. तो पॉइंट नंबर 1 से लेकर अगर पॉइंट नंबर 6 तक देखें तो आपको सारा जो मुद्दा है वो MSMEs के बारे में है. तो the first topic that the finance minister talked about to reform is the MSME sector. ठीक है. पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 की बात की जाए तो this talks about the EPF. So the second topic is EPF. Point number 9 and point number 10 talks about NBFCs, housing finance companies and microfinance institutions. So NBFCs, HFCs and MFIs is the third topic that is being dealt today, talking about the reforms that are needed in the Indian economy. Point number 11 talks about DISCOMs. DISCOMs are distribution companies, and this is the fourth topic that was talked about regarding reforms. इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 12 एंड पॉइंट नंबर 13 दैट टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड रियल एस्टेट. तो इनमें क्या रिफॉर्म्स चाहिए. सो कॉन्ट्रैक्टर्स एंड रियल एस्टेट इज़ द 5th point or the 5th topic that was discussed. And last,
was the direct tax measures that were discussed. So there were overall 6 topics into which these 16 points can be divided: MSMEs, EPF, banking finance institutions like NBFCs, MFIs and HFCs, discoms, contractors or real estate, and direct taxes. So what we'll do is we'll discuss these highlighted economic terms, so that when you again read this article, this presentation, or the coming news which will be in the newspapers all over in the coming days, you can understand the topics, the reforms better. So पहला जो ये term है, that is automatic loan. ठीक है, automatic loan होता क्या है? So automatic loan is any loan via the automatic route. If you are eligible, if your credentials are good enough and you are eligible for, if you pass the eligibility criteria that has been set, you will be directly admitted to enter into a loan agreement. ठीक है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर 25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है किसी भी कंपनी का बैंक में, दैट इज़ द लोन येट टू बी पेड, and if that company has a 100 crore turnover, then they are eligible. तो ये हो गया एक ऑटोमेटिक रूट कि अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो यू कैन गेट अ कोलैटरल फ्री लोन. सो दिस इज ऑटोमेटिक लोन्स. फिर एक टर्म मिला हमें सबऑर्डिनेट डेट. व्हाट इज सबऑर्डिनेट डेट? सबऑर्डिनेट डेट को समझने के लिए आपको डेट समझना पड़ेगा ना. डेट या उधार दो तरीके के होते हैं, सीनियर और सबऑर्डिनेट, डिपेंडिंग ऑन द और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेटिंग. ठीक है, अगर बहुत अच्छी क्रेडिट रेटिंग है और सिक्योर लोन है कि हाँ ये वापस रिपे हो ही जाएगा, इट इज़ कॉल्ड अ सीनियर डेट. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा लगता है कि अनसिक्योर है, चांसेस हैं कि ये रिपे नहीं हो पाएगा, हो सकता है एनपीए हो जाए, उनकी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है, देन इट बिकम्स अ सबऑर्डिनेट. ठीक है, जब भी कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और उसको लिक्विडेट किया जाता है, तो the priority also decides whether that debt was a senior or subordinate. ठीक है, तो subordinate debt is the secondary debt or that debt which has a lesser credit rating. जब भी liquidate होगा तो पहले senior debt repay होगा, उसके बाद फिर subordinate debt repay होगा. This is what subordinate debt is being talked about here. तो ये NPA या फिर stressed MSMEs के लिए है. फिर बात हुई इक्विटी इन्फ्यूजन की और फंड ऑफ फंड्स की. ठीक है, पहले इक्विटी इन्फ्यूजन समझते हैं. अगर कोई इन्वेस्टमेंट इज वाया स्टॉक परचेज, दैट इज कॉल्ड इक्विटी इन्फ्यूजन. द इन्वेस्टर विल बाय न्यूली इशूड स्टॉक्स फ्रॉम द कंपनी. ठीक है, द अर्निंग्स फ्रॉम सेलिंग स्टॉक्स कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी इन एनी वे इट डिजायर्स. इससे क्या होगा? और दूसरा तरीका क्या होता है? कैश या कैपिटल इन्फ्यूजन होता है, जिसमें कि डायरेक्टली एक स्टेक होल्डर होता है कंपनी का, जिसका बहुत कुछ दाव में लगा हुआ होता है ऑलरेडी, एंड दे आर रेडी टू इन्फ्यूज़ मोर मनी और पुट इन मोर मनी इनटू द कंपनी सो दैट इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग एंड गिविंग प्रॉफिट्स. तो दो तरीके हो गए, एक हो गया इक्विटी फ्यूजन, दूसरा हो गया कैपिटल और कैश इन्फ्यूजन. तो यहाँ पे गवर्नमेंट इक्विटी इन्फ्यूजन करने की बात कर रही है, मतलब वो एमएसएमई के शेयर्स खरीदेंगे, स्टॉक्स खरीदेंगे. ठीक है, लेकिन वो कैसे खरीदेंगे? फंड ऑफ फंड्स रूट की तरफ से, FOF कहते हैं इसको. This is an indirect way of investing where you do not invest directly in a company stock. Instead, you invest in a pool or group of funds which in turn contains various stocks and bonds and other securities. इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, The purpose of using the fund of funds is diversification of funds and automatic sorting of the best performance stocks. इससे क्या होगा कि आप रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो कि बहुत वोलाटाइल हैं. ठीक है, तो एक तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है, द बेस्ट परफॉर्मेंस जो होता है वो सॉर्ट आउट हो जाता है कि हाँ भाई ये बेस्ट परफॉर्मेंस है, वो ऑटोमेटिकली उसमें हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, अलग अलग सोर्सेज होते हैं, अलग अलग कंपनी के शेयर्स एक साथ पूल किए हुए होते हैं, तो एक एवरेज वैल्यू सेट हो जाती है, एंड दैट एवरेज गेट्स पुल्ड down by any poor performing stock and gets pulled up by any good performing stock. ठीक है, तो एक तरह से एक एवरेज वैल्यू सेट हो जाती है जिसकी वजह से आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलते हैं. सो दिस इज़ द रूट वाया विच द गवर्नमेंट विल बी डूइंग इक्विटी इन्फ्यूजन इन द MSME सेक्टर. ठीक है,
MSMEs के डेफिनेशन को चेंज किया गया है. इन दिस चार्ट हैज़ बीन शोन कि एग्जिस्टिंग MSME क्लासिफिकेशन क्या था और रिवाइज MSME क्लासिफिकेशन क्या है. पहले आप देख सकते हैं कि इंटायर MSMEs वर डिवाइडेड इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज एंड सर्विस एंटरप्राइजेज. अभी वो सारा क्लासिफिकेशन हटा दिया गया है. मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, सबको एक में ला दिया गया है. नाउ व्हाट वर माइक्रो अर्लियर फॉर 25 लाख अप टू 25 lakhs ऑफ इन्वेस्टमेंट in the manufacturing and up to 10 lakh of investment in services, all have been come under one criteria of micro, and now the limit for investment is up to 1 crore and the turnover should be up to 5 crores. That is now small. Now this turnover of up to 5 crores was the investment limit earlier for small classification. ठीक है, आप इस एरो में देख सकते हैं कि पहले जो स्मॉल था इन्वेस्टमेंट लिमिट, वो अभी का टर्नओवर लिमिट है फॉर माइक्रो. अभी नया स्मॉल जो है वो पहले मीडियम का इन्वेस्टमेंट लिमिट था इन द मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस. ठीक है, नाउ इफ़ यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट अप टू 10 crore rupees and you have a turnover of up to 50 crore rupees, you are a small enterprise. ठीक है, मीडियम का ऑल टुगेदर चेंज हो गया है. अब 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ तक का टर्नओवर. So this is the new definition of MSMEs. This is what you needed to know about the new definition of MSMEs. Now we came across a term called global tenders. Global tender क्या होता है? Global tender कुछ नहीं होता. Global tender is a tender that is open to anyone in the world. कोई फॉरेनर भी आकर उस टेंडर के लिए अप्लाई कर सकता है और उस टेंडर को ले सकता है. ठीक है, a tender that is open to anyone residing in any part of the world. और भी तरीके के टेंडर होते हैं, जैसे सिंगल टेंडर, लिमिटेड टेंडर, ओपन टेंडर. ठीक है, तो ग्लोबल टेंडर वैसे ही एक तरीका हो गया, दैट इज़ ओपन टू एनीवन. तो गवर्नमेंट ने बेसिकली ये कहा कि भाई 200 करोड़ तक के जितने भी टेंडर्स हैं उसको हम ग्लोबल टेंडर नहीं बनाएंगे. ओनली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ओनली इंडियन नेशनल्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन दोज टेंडर्स एंड ओनली दे विल बी गिवन सच कॉन्ट्रैक्ट्स. 200 करोड़ के ऊपर का जितना कोई भी प्रोजेक्ट्स होगा, जितने भी टेंडर्स होंगे, वो कोई भी आके ले ले. But up to 200 crores will be invested only by Indians. That is global tenders. फिर और कुछ interventions की बात हुई जहाँ पे receivables की बात हुई. MSME receivables are basically the amount that the government and CPSEs owe to the MSMEs. जो पैसे MSMEs को मिलने चाहिए थे, ठीक है, वो 45 दिन में रिलीज़ कर देंगे और receivables. फिर हम मूव करते हैं EPF की तरफ. तो EPF में 12% का जो पेमेंट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का वो गवर्नमेंट देगी. वो 12% घटा के 10% कर दिया गया है फॉर 3 months. ऑल दीज थिंग्स, नथिंग इकोनॉमिक एज सच टू बी एक्सप्लेन्ड. हाँ, नाउ लेट्स मूव टू दिस NBFCs, HFCs, MFIs वाले टॉपिक पे, जहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस की बात हुई थी. अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेट मार्केट होता क्या है? ठीक है, डेट मार्केट समझ में आता है ना, स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे स्टॉक का खरीद बिक्री हो रही है. ठीक है, तो अब वहाँ पे 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या होता है, सिक्योरिटीज़ आर क्रिएटेड, और सेकेंडरी में सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड. ठीक है, सिक्योरिटीज़ बनते कहाँ हैं? प्राइमरी में, और उनकी ट्रेडिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में. Now, primary market is a place where companies sell new stocks and bonds to the public for the first time. IPO के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ये प्राइमरी मार्केट में होती है. कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई भी कंपनी अगर नए स्टॉक्स बेचना चाहती है, नया शेयर बनाती है अपने वैल्यूएशन के हिसाब से, तो पहली बार जब उसको वो पब्लिक को ऑफर करती है, दैट इज़ इन द प्राइमरी मार्केट. बाद में उन स्टॉक्स का, बॉन्ड्स का, ऑप्शंस का, फ्यूचर्स का जब ट्रेडिंग शुरू होता है, तो फिर वो सेकेंडरी मार्केट में होता है. दिस इज़ व्हाट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस रिलेट टू. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू दिस NBFCs, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसमें कि 20% तक का लॉस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगी. डिस्कॉम्स और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके पैसे नहीं मिल रहे उनको, तो वो पावर जनरेटिंग कंपनीज़ को पैसे नहीं दे पा रहे. पावर जनरेटिंग कंपनीज़ रॉ मटेरियल्स के लिए पैसे जुगाड़ नहीं कर पा रही. दिस इज़ द सप्लाई चेन प्रॉब्लम. तो इसके बारे में कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हैं. 90,000 करोड़ रुपीज़ इन्फ्यूज़ किए जाएंगे इसमें. ठीक है,
कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में भी कुछ दिया हुआ था। फोर्स मेजोर के बारे में जान लें। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कंसिडर दिस एज एन एक्ट ऑफ गॉड। तो वो एक्ट ऑफ गॉड या एनी अनप्रेसिडेंटेड इवेंट or any event that is out of the control of the parties in contract is called force majeure. आगे बढ़े तो TDS एंड TCS के बारे में बात कर लें। TDS होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और TCS होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। फ़र्क क्या है? TDS इज़ एन एक्सपेंस, TCS इज़ एन इनकम। ठीक है, TDS इज़ द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ रेसिपिएंट while TCS is the amount collected by the payer। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखें समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब भी आप ट्रांसफ़र करते हैं पैसे या फिर सैलरी ट्रांसफ़र होती है या कोई ब्रोकरेज फ़ी या इंटरेस्ट पेमेंट होता है तो वहाँ पे TDS कटता है। लेकिन इफ़ यू आर बाइंग सम गुड, एग्जाम्पल लिख कर ज्वेलरी और यू आर पेइंग फॉर अ टोल टिकट और अ पार्किंग चार्ज, then you are paying TCS. The tax is collected at the source at such a place, while TDS is the deduction. ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि TDS is pay as you earn and TCS can be called as earn when you sell. So this is TCS and TDS. So these were altogether those topics that you may or may not have heard before or come across before and needed to be discussed. So now when you read the reforms in detail, you will be able to understand what every reform talks about and what is the underlying basis for all those reforms. So I hope you read this document. I'll upload this document in the files and I'll provide you a link for downloading this document so that you can go through everything that is written on this. I'm open to questions and doubts. Whatever doubts you have still in your mind while reading or going through this document, you're free to ask me in all the ways of contact that are provided here. So thank you so much. I hope you have a good reading.